नमस्कार, ओम शांति। आज के इस एपिसोड एक मुलाकात में हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं मिसेस तुलसी जोशी, जो बहुत ही एक सैवी इनोवेटिव पॉलिटिकल काउंसलर हैं, जिनकी जर्नी रही सैमसंग से लेकर साउथ एमसीडी के इलेक्शंस उन्होंने लड़े। स्वागत है मिसेस जोशी आपका। प्लीज आप बताएं अपने बारे में कुछ, अपने इनिशियल डेज की जर्नी बताएं कि आपने कैसे ये एक सोचा कि मैं एक कॉर्पोरेट विमेन, 15 years you were in corporate, right? 20 years. And almost 20 years Yeah. being an HR person, और फिर आप एक पॉलिटिशियन बन गई हैं अभी, तो प्लीज जरा कुछ शेयर करें। See, if you talk about my childhood, I would say was a tough journey for me because I lost my father when I was in sixth class. So he just gone through with the brain hemorrhage, and our life has certainly scattered because नहीं समझ में आया कि अब आगे क्या, what will be the next. बहुत छोटी उम्र में, बहुत छोटी थी और my younger sister was 2.5 years. So it was really challenging for us. We were 3 sisters and 2 brothers. So it was really challenging for us that how do we survive. My father was in a government job, so that was the best part for us because after his death, my mother has got the job, and then we start surviving. We did a lot of things at home front. We do small jobs and all, so that will, because having a big family, it's really tough. We were on a rented house. कहाँ, और, दिल्ली में कि कुमायूं yes, में? You Delhi belong में, to Kumayu, yes, right? yes, I belong from Uttarakhand, but brought up born up in Delhi. So करोल बाग हम रहते थे, तो रेंटेड हाउस था, तो अगेन दैट वाज अ चैलेंज कि आपको रेंट भी देना है, ब्रेड बटर भी चाहिए, स्कूलिंग भी था, सब कुछ था. मेजर थिंग व्हाट माय मदर थॉट अबाउट इट कि व्हाटएवर इट इज, व्हाटएवर वी आर गोइंग थ्रू, बच्चों को पढ़ाना ज़रूर है. बिकॉज शी फेल्ट कि एजुकेशन इज़ अ बिग टूल, कि आप एजुकेटेड हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, आप भूखे नहीं मर सकते. सो वो उनका एक हमारे ऊपर विश्वास था, और डेफिनेटली हमने भी पूरा सपोर्ट अपनी मदर को किया. और क्योंकि वो घर में नहीं होती थी, वर्किंग थी, तो हम लोगों ने खुद से सोचा कि नहीं, वी शुड बी आइडल चाइल्ड, आइडल स्टूडेंट बने, अच्छे बच्चे बने और अच्छी पढ़ाई करें. सो वी ऑल स्टडीड, सब ने अच्छे से पढ़ाई की, और उसके बाद स्कूलिंग ख़त्म हुआ, देन स्टार्ट कॉलेज, और उसके बाद आई स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दयाल सिंह कॉलेज. आई डिड माय ग्रेजुएशन, देन आई गॉट मैरिड इन 2000, और उसके बाद मैंने आई डिड अ MBA इन HR. तो आपको Some सपोर्ट था voices say, from your married yeah. life too. So I was having a good support of my family, my in-laws, my husband, of course. Without him, I can't think about myself because after marriage, he supported me a lot. मेरी family को भी बहुत support किया because brother sister की marriage की, सब कुछ किया. So that all we did by the grace of God. तो वो काफ़ी supportive थे, तभी हम ये सब कर पाए. तो आपके जो challenges थे, like you lost your father इतनी young age में, तो आपने क्या चीज़, क्या value systems, क्या सोचा होगा, कुछ principles बनाए, क्या ambition सोची आपने कि मुझे ये बनना है? I feel कि when you are well off, everybody will help you. But if you are in trouble, normally people don't help. This is what I experience. So you have to be self-reliant बने, और like my father always says कि एक रोटी कम खा लेना, लेकिन कभी किसी से मांगना मत. So that thought is always there in my mind all the time, even till now. We follow that. हमने बहुत मेहनत की, बहुत काम करते थे. We save money, then we bought a house in रोहिणी, और घर खरीदा, और उसके बाद my sister also work, I also work, जॉब की, फिर उसके बाद we made a house, और then धीरे धीरे करके, and that is all because of the education, कि पढ़ाई लिखाई करके हम अच्छी jobs में गए. And I started my career with JK Tyres. I was working there. Then later on, my last company was Samsung. So parallelly, I was doing study also, and my husband is in a government sector. So his support was there. So एक security, would you say कि job security government sector में normally रहती है, तो उस तरह का कुछ वो था नहीं. And I was in a joint family, तो family का support बड़ा रहा. I'm having a kid, one kid, एक बेटा है मेरा, is doing BTech final year. So वो सारे challenges देखे लाइफ में, इतना कुछ सफ़र किया, और देखा कि जब आपको ज़रूरत होती है तो nobody is there to stand. And that was the thing जिसने मुझे बहुत पुश किया कि लाइफ में कुछ करना है, कुछ करना भी है, साथ में अपनी फैमिली को भी साथ साथ आगे बढ़ाना है. नॉट लाइक आई विल डू समथिंग, माय सिस्टर, ब्रदर,
दे शुड ऑल्सो स्टडी वेल, और वो भी अपने पैरों पे खड़े हों। एंड ऑफ कोर्स उसमें हम बहुत कामयाब हुए सभी। माय सिस्टर इज़ इन स्वीडन राइट नाउ, माय ब्रदर इज़ वर्किंग वेल, ही डिड CFA, ही इज़ वर्किंग इन सीमेंस, ही इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। सो तो आप सब भाई बहनों ने बचपन के चैलेंजेस देखे और उसमें चैलेंजेस देखे। सक्सेस। शी मतलब बोथ ऑफ देम दे टीच ट्यूशंस एंड ऑल, और अच्छा मतलब 12th के बाद से वो लोग ट्यूशंस पढ़ाते थे। अच्छी इनकम थी, 20-30 हज़ार उस समय कमाना वाज़ अ बिग चैलेंज। और मेरी शादी हुई तो उसके बाद एक वर्किंग हैंड हटा। सो ऑफ कोर्स घर में फिर था कि अब मैं जा रही हूँ शादी होके, एंड ऑफ कोर्स इंडियन कल्चर में रहता नहीं कि लड़की शादी होके चली जाए तो वो फाइनेंशियल सपॉर्ट अपनी फैमिली को करे। बट माय ब्रदर सिस्टर वाज रेडी, और उन लोगों ने ट्यूशंस पढ़ाई, साथ साथ अपनी पढ़ाई की। माय सिस्टर डन MCOM B.Ed उसने किया, तो उसने भी अपनी अच्छी पढ़ाई की, एंड दे वर वेरी गुड इन स्टडी। तो ऐसे कर कर के आगे बढ़े। तो पॉलिटिकली फिर कैसे आपने सोचा? पॉलिटिकली क्या सी बचपन आई में था इस तरह का एम्बिशन या आई थॉट? बिलीव इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। हमेशा से मुझे ये तो रहा, आई वाज वेरी मच लाइक इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स, सोशल थिंग्स में बहुत ज़्यादा थी, और ऑफिस में भी बहुत इन्वॉल्वमेंट रखती थी इन सब चीज़ों में। तो मुझे ऐसे लगता था हमेशा कि ना कुछ करना चाहिए लोगों के लिए, स्पेशली दोज नीड अ हेल्प, बिकॉज आई हैव सीन दैट टाइम कि वहाँ जब आपका परिवार आपके साथ खड़ा नहीं होता तो आप किसको अप्रोच करेंगे, किससे अगर आपको कोई मदद चाहिए तो इज़ देयर एनीबडी इन द सोसाइटी हु कैन हेल्प यू। तो वो कहीं न कहीं मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आप वर्किंग हो तो आपका एक लिमिटेड रूटीन है, एक लिमिटेड लाइफ़स्टाइल है, और उसके रहते आप सोशल वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। सो 20 साल आई वाज़ इन कॉर्पोरेट, जॉब वॉब किया, सब कुछ था, एंड सडनली एक टर्निंग फेज़ आया। आई गेट इनटू बीजेपी, और उसमें एक कार्यकर्ता के तौर पे मैंने पार्टी ज्वाइन की, और एज आई ऑलवेज बिलीव इन हार्ड वर्क। तो वो हार्ड वर्क बचपन से क्योंकि करा तो वो ब्लड में था कि हार्ड वर्क करना है, और हमेशा ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि मैंने कभी भी एफर्ट्स किए, हार्ड वर्क किया तो मुझे रिजल्ट ज़रूर मिला है। इट्स वेरी रेयर कि ऐसा हमेशा नहीं होता कि आपने बहुत मेहनत की फिर आपको रिजल्ट मिले, नॉट फॉर बट एवरीबॉडी। मुझसे मेहनत बहुत करवाता है ऊपर वाला, लेकिन मुझे रिजल्ट भी देता है। सो आई फील सो हैप्पी कि मैं जब भी किसी चीज़ के लिए आई गिव माई 100%, सो आई ऑलवेज गेट द रिजल्ट। तो वो मुझे हमेशा रिजल्ट रहा। तो जब मैं पॉलिटिक्स में आई तो आई स्टार्ट वर्किंग इलेक्शंस में, और उसमें कॉलेज इलेक्शंस में, पार्टी की एक्टिविटीज़ में। सो आई वर्क, सो आई विल बी नोन इन द पार्टी कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे दी जाती है, दैट वी शुड आस्क फ्रॉम तुलसी। I was a general secretary of women wing in New Delhi, BJP. Then I've become a secretary in the main team of New Delhi district of BJP. Then that election has come, and I have shown my interest that I wish to, because मुझे लगा कि बाहर रह के आप नहीं उतना वो कर सकते. You have to get into the full flash political Being a system, political and then you person, can do many things for the society. So and BJP is always look for the good people, and अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, काम अच्छा है, so they always take you ahead. और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, आई वेंट फॉर इलेक्शन, एंड थैंक्स टू माय MP, माय पार्टी प्रेसिडेंट, दे हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी, और मैं इलेक्शन लड़ी। और मेरा वार्ड ऐसा वार्ड था जहाँ नॉर्मली बीजेपी उतनी आसानी से जीतती नहीं है, आर के पुरम। रीज़न इज़ कि वहाँ पर सेवा बस्ती बहुत हैं, और कहीं न कहीं सेवा बस्तियों को शायद बीजेपी से कुछ नाराज़गी रहती है, कि जिसका रीज़न है कि हमें उतना ज़्यादा वहाँ से वोट बैंक नहीं मिलता। तो सेवा बस्ती मीन्स द झुग्गी क्लस्टर एरिया। ठीक। सो मुझे जब मैं इलेक्शन में खड़ी हुई, आई डिड कैम्पेनिंग, सम कॉम्बिनेशन वाज ऑफ द कैंडिडेट, थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग था। आई वाज द एजुकेटेड वन, एंड गवर्नमेंट एरिया था, गवर्नमेंट कॉलोनी थी, तो माय हस्बैंड इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोफाइल। तो समवेयर लोगों ने उस चीज़ को समझा कि आई एम अ कॉमन मैन, कॉमन लेडी फ्रॉम उन्हीं लोगों के बीच में से थी। एक्सेप्टेंस थी, एजुकेशन था। देन थर्ड इज़ आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, एज आई सेड। तो हमारे उत्तराखंड समाज के लोग बहुत रहते हैं आर.के.पुरम में, उनका पूरा सपोर्ट और सहयोग रहा, एंड ऑफ कोर्स द होल आर.के.पुरम पीपल हैज सपोर्टेड मी, और इलेक्शन हम जीते। तो मुझे लगता है कि उस समय तो मेरे पास ऐसा प्रूफ बताने के लिए कुछ नहीं था बहुत ज़्यादा, एक्सेप्ट द पार्टी, कि मैं बीजेपी से हूँ, एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू इन फ्यूचर, दैट ओनली आई कैन एक्सप्लेन, दैट आई डिड दैट। और बावजूद उसके उतना ही मैंने बताकर मैं लोगों के बीच उतरी, और मैंने कैम्पेनिंग किया, और पीपल सपोर्टेड मी अ लॉट, और मैं अच्छा मार्जिन था 2800 वोटों का, जहाँ पर सीट जीतना मुश्किल है, वहाँ 2800 वोटों से जीतना मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। और समवेयर आई वाज वेरी मच श्योर अबाउट, आई मीन people were not sure about that we are going to win, as I said, seat was not positive,
but I was 100% sure that we are कि वो going to जीतेंगे। win. हाँ, How that has come in my mind, we made just a format कि इतने यहाँ से मिलेंगे, इतने यहाँ से and all. So maybe तो I just made it कि 1500 का margin आ रहा है, so we will win. So that is very interesting और इतनी यंग एज में आपने सब चीजें वो करी। So तुलसी जी, आई मीन जैसे काउंसलर बन गई और आप बता रहे हो कितना चैलेंजिंग था ये वाला पोर्शन आर के पुरम और सेवा बस्ती को लेकर, तो वहां पर वाकई बहुत बड़ा स्ट्रेच है सेवा बस्ती को लेकर, तो उसमें फिर काफी काम किया होगा आपने। जी, क्योंकि हम्म। मुझे फिर जब अपॉर्चुनिटी मिली एंड पीपल हैव गिवन वोटिंग फॉर मी, और जब आप काउंसलर बन जाते हैं तो भले ही आपको सेवा बस्ती के कुछ लोगों ने दिया हो, ज़्यादा लोगों ने ना दिया हो, बट आई बिलीव कि वंस यू बिकम अ काउंसलर तो आप सबके लिए काउंसलर हैं, जिन्होंने दिया उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं दिया। तो एक लाइन से चल के हमें सबके वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए और सबके लिए काम करना चाहिए, और इन दैट वे हमने सेवा बस्तियों में बहुत काम किया। बेसिकली तो सेवा बस्ती के अंदर सिर्फ हमारे पास सैनिटेशन पार्ट आता है फ्रॉम द कॉर्पोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैज टू बी टेकन केयर बाय दिल्ली गवर्नमेंट, लाइक लाइट देना, वहाँ सीवर व्यवस्था करना या वहाँ रोड्स बनाना एंड ऑल अंदर की, वो सब उनका काम So होता that है। means आप लोग को उन सब चीजों के लिए you have to take up the files, the issues Yeah. to bring it to that area. So so basically दिल्ली गवर्नमेंट का काम है, दिल्ली गवर्नमेंट करती है, they don't listen us because we are from the different party. So of course they are not going to listen the BJP people. हमारे पार्ट पे आता है सैनिटेशन पार्ट, that we did. Beyond that हमने जो वहाँ पर जो बेसिकली दिल्ली सरकार का काम था, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक क्लस्टर है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिक्वायरमेंट थी एक टॉयलेट ब्लॉक की, सो दैट आई टेकन अप, और उसके लिए मैंने कॉर्पोरेशन में बात की। पढ़े लिखे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा आपको हर जगह मिलता है। तो आई हैव स्पोकन टू द कमिश्नर और मैंने कहा ये बहुत चैलेंजिंग है और यहाँ पर हमें एक बड़े टॉयलेट ब्लॉक की ज़रूरत है। तो हमने पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा टॉयलेट ब्लॉक वहाँ बनाया है, विच कैरीज 56 टॉयलेट ब्लॉक एंड 28 बाथरूम। अच्छा, आर के पुरम आर के पुरम में, यस, और वो उस क्लस्टर के अंदर बना है। नोबडी कैन इमेजिन कि इस झुग्गी क्लस्टर के अंदर, सेवा बस्ती के अंदर भी इतना बड़ा टॉयलेट ब्लॉक बन सकता है। तो वो हमने बनाया, दैट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, और उन लोगों के लिए बड़ी राहत थी क्योंकि वहाँ पानी का बहुत इशू है, लोग कहते हैं। अब ऐसे में वो बेचारे, पानी नहीं है तो आप टॉयलेट ऑफ कोर्स यू कांट यूज इट अगर आपके घर में है भी तो, और नहाने के लिए पानी नहीं है, वो एक चैलेंजिंग है। लाइक दिल्ली सरकार से पानी फ्री, बट पानी हैज टू बी देयर बिकॉज Arkepuram is between the most poshest area. Yes. The Vasant Vihar, the Chanakyapuri Yes. on the left and the right. Yeah. जो VIP area है, उसके Yes. बीच का area है बीच सारा। का एरिया, there are many clusters even in Arkepuram and as well as in Vasant Vihar also there are many clusters. So हमने वहाँ वो टॉयलेट ब्लॉक बनाया। Then again I always believe to do something different from the others. You know, like being as a The innovative Tulsi ji. Yeah. Like सड़क बनाना, इंटरलॉकिंग्स बनवाना, सैनिटेशन पार्ट, लाइट लगवाना, दिस इज ऑल कॉमन वर्क, एवरीबॉडी इज डूइंग इट। रूटीन के हैं। यस, एवरीबडी इज डूइंग इट, एवरीबडी हैज टू डू, ऑल द काउंसलर्स। So I feel कि what is different you are doing from others. So whenever I go anywhere, I always speak what different I am doing. I don't mention all these. I mention like I made this toilet, as I mentioned you. I made a children toilet. So there is not a single children toilet is there in Delhi. So that I have made it. Entire Delhi. Entire Delhi में सिर्फ बच्चों की टॉयलेट कहीं नहीं है, जो सिर्फ डेडिकेटेड बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चों के लिए यू नीड अ लो हाइट डोर्स, बिकॉज दे कांट यू नो पुट अ दिस। तो हमने लो हाइट छोटे दरवाजे वाली टॉयलेट्स हमने बनाई बच्चों के लिए। सो दैट इज बेसिकली फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, सेपरेट सेक्शन फॉर बॉयज एंड सेपरेट फॉर गर्ल्स एंड वन फॉर द हैंडीकैप। So that we made it, that was something different I did. And of course open defecation बहुत ज़्यादा था, तो हमने उसको कंट्रोल में करते हुए, एंड ऑफ कोर्स मोदी जी का स्वच्छ भारत मिशन है, सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट एंड वी शुड। तो हमने वहाँ पर बहुत सारे टॉयलेट ब्लॉक, आर के पुरम में आज की डेट में 17 टॉयलेट ब्लॉक्स वी हैव, सो दैट अंडर दैट स्वच्छ भारत वी मेड इट। एंड बियॉन्ड दैट वी हैव वन कुष्ठ रोग आश्रम इन आर के पुरम, सो देयर आल्सो, यस। So I feel they are the people, I mean, मतलब मैं वहाँ जब भी जाती हूँ I feel so emotional, like they can't work, उनके पास कोई काम करने का ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, they are dependent on like वो beggars की तरह वो लोग भीख मांगते हैं और वो सब करते हैं, उससे उनकी रोटी Is it a government run or a private? कॉलोनी, उसमें 60 मकान है,
पूरा अच्छा। वो वही लोग रहते हैं उसमें। तो वहाँ पर हमने सुषमा जी जब थी, सुषमा स्वराज जी, वो उनका पसंदीदा एरिया है। जब शी ऑलवेज कम एवरी ईयर फॉर हर बर्थडे, वो वहीं सेलिब्रेट करती थी। अच्छा। उनके लिए भोजन बनता था, उन्हें कुछ अच्छा सा गिफ्ट देती थी। तो शी ऑलवेज वर्क फॉर देम। और फिर उसके बाद मैं काउंसलर बनी, हमारे रहते भी वो आई। उसके बाद उनकी डेथ हुई, उनकी डॉटर आई। सो वहाँ पर हमने लाइट का बड़ा इशू था, बिल आते थे बड़े बड़े, दे कांट अफोर्ड बी एस इज लीस्ट बॉदर अबाउट, उनको तो बिल चाहिए। सो दे केम टू मी एंड दे सेड कि दीदी हम कहाँ से इतना बिल भरें, बिल आ गया इतना इतना करके। वी थॉट कि वी शुड फाइंड आउट सम वे। तो हमने वहाँ पर सोलर पैनल लगवाए, और सोलर पैनल लगा के वहाँ पर हमने उससे एक लाइट, एक पंखा और एक चार्जिंग पॉइंट, ये 3 चीज़ें हमने हर मकान में दी। और रेगुलरली उसकी मेंटेनेंस होती है। तो वो एक बहुत बड़ी राहत थी। और अदरवाइज भी वहाँ पर जो भी उनकी रोड बनानी थी, गेट लगवाना था, सो दैट आई ऑल डिड। एंड आई व्हाट इज फील द स्पैन जिसमें आपने इतने सारे एजेंडास सब 5 ईयर स्पैन था हमारा ये, 5 तो साल 5 का। इयर्स में आपने सारे के सारे सो यू सो सॉर्ट आई इट। एम दैट्स व्हाई आई कुडंट फील कि मेरे 5 साल कब खत्म हो गए, मुझे ही नहीं पता चला। वेरी बिग थिंग दे टोल्ड दैट डे, उनकी डॉटर आई हुई थी। तो आई वाज वेरी इमोशनल दैट टाइम, आई वाज लिटरली क्राइंग। दे सेड कि सुषमा दीदी गया तो हमें दूसरा सुषमा दीदी दे गया। मेरे लिए अच्छा। बहुत बड़ी बात है, मतलब हम तो सुषमा जी के नखून के बराबर भी नहीं हैं। जिस तरह की वो नेता रही हैं हमारी, पूरे विश्व में शी विल बी नोन। और आई रियली फेल्ट सो गुड कि उन लोगों ने मुझे वहाँ कंपेयर किया कि मैं उन लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। एंड वी आर नोबडी, यू नो, गॉड इज देयर टू यू नो टू गाइड अस। हम कुछ भी नहीं है ना, हम कुछ कर सकते हैं किसी के लिए, लेकिन वो ऊपर वाला है जो हमसे करवाता है। एंड आई फील कि हम ये सब अपने गुड कर्मास के अंदर ऐड करते हैं। सो दैट ऑल, हमारे यहाँ एक क्लस्टर में आग लग गई। मेरे काउंसलर बनते के बाद साथ ही हम सेलिब्रेट कर रहे थे, और उसी समय फ़ोन आया कि एक सेवा बस्ती में आग लग गई है। पूरा हमने फायर ब्रिगेड बुलाई, सब कुछ करा, लोगों का नुकसान, लेकिन झुग्गियाँ जल गई काफ़ी। उसमें भी हमने, हमारी जो एमपी है मीनाक्षी जी, उनके माध्यम से हमने, मीनाक्षी लेखी जी जी हाँ, शी इज़ आवर एमपी, आवर मिनिस्टर। उनकी मदद से हमने एलजी को अप्रोच किया, उन्हें पैसे दिए, उन्हें बाकी हेल्प दी हमने, जो भी हम कर सकते थे। सो वी हेल्प So देम। this is a 24/7 job. 24/7 जॉब, 24/7 ऑफ कोर्स। job. मतलब रात को 12 बजे भी आपके पास फ़ोन आता है, यू हैव टू अटेंड। एंड सो ये मुझे लगता है कि हम किसी भी उसमें जाते हैं, किसी भी प्रोफ़ाइल में जाते हैं, आपको उसके साथ जस्टिस करना चाहिए। पीपल हैव चूज़न यू, तो आपकी ज़िम्मेदारी है उनकी आकांक्षाओं पर खरे उतरना। खड़े हाँ, उतरने के ऑफ लिए। कोर्स 10 चीज़ें आपको बोलते हैं, आप 10 की 10 चीज़ें नहीं कर पाते, बट यू हैव टू बी You रिस्पॉन्सिव। have to strive for the best in यस, your एंड यू capacity. बी रिस्पॉन्स देना चाहिए, टाइमली रिस्पॉन्स दें। True. ऑफ कोर्स 10 की 10 चीज़ें हम नहीं कर सकते, 10 में हम 5 करते हैं, 6 करते हैं, बट आंसर हर चीज़ का देना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो Yes. सकता। So just you know, I was just wondering कि जो आजकल की जनरेशन है, जैसे you know, the young generation of today, 21st century के जो बच्चे हैं हमारे youth, so आपको क्या लगता है? I mean, you've been interacting with them. एक टाइम आप भी यूथ थे और जी। आज के यूथ में कि ये सारी क्वालिटीज ना जो हमें मतलब दूसरों को देखकर दूसरों के लिए करने के लिए ना वो एक द ड्राइव एंड द जेस्ट टू डू दैट. So what is your, you think, is there something that you need to really figure out with the youth today? या आप उनसे डील करते हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनको करना चाहिए? There's something that you feel that is missing with them that they should really take up to. Because after all, we are, the youth is the builder of the nation. ऑफ कोर्स। है ना? So ये emotions, ये patriotism, ये एक feeling जो एक self centric approach से हटकर, you know, एक outward bound approach पे चले. So what would you like to say See, for them? I personally feel when we talk about youth, it's not about कि हम ये, कई जगह मैंने सुना भी, वक्तव्य में भी सुना कि यूथ डाइवर्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, द पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, because what kind of upbringing you are giving, sanskar you are giving to your child, that matters. Like 18 years की एज में हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा दादा दादी के पैर छुए, तो वो नहीं छुएगा until unless आपने उसको बचपन में नहीं सिखाया। और वो सिखाने से नहीं होता, what he see, जो वो देखेगा वो अपने पेरेंट्स करेगा। को करते मैं हुए सबको यही कहती हूँ कि बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, बच्चे वो नहीं करेंगे कभी भी जो आप उनको समझाएंगे। हम उसको बोलें कि बेटा आपने
दादा दादी के पैर छूने हैं, लेकिन मेरे इन लॉज मेरे घर आते हैं और मैं ही उनके पैर नहीं छू रही, बट आई एम टीचिंग हिम कि आपने उनके पैर छूने हैं, तो ही विल आंसर बैक कि आप तो छूते नहीं, तो व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है संस्कार है। लाइक मेरा बेटा, आई जस्ट गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, व्हेन ही वाज इन 6th-7th स्टैंडर्ड, तो घर में कोई आया, उसने पैर छुए, तो लाइक एज यू सेड कि यूथ, उसने घुटने तक हाथ गए और उसके बाद मैंने कहा बेटा कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई जबरदस्ती नहीं थी पैर छूने की, आप हाथ जोड़ के नमस्ते कर दो, ऐसे पैर मत छूना। पैर छूना है तो वो पैरों तक ही हाथ जाने चाहिए और वापस सर में आने चाहिए। सो वो दिन था और आज का दिन है, वो कभी भी घर में कोई आता है वो वैसे ही पैर छूता है, पैर छुएगा, पूरे पैरों तक हाथ लेके जाता है विद रिस्पेक्ट। सो दैट शुड कम। सो समवेयर वी आर रिस्पॉन्सिबल ना, हम अगर नहीं सिखाते, नहीं बताते या हम नहीं कर रहे होते, सो ही इज नॉट गोइंग टू the लर्न। value systems and sanskars have changed so much. सो हम लोग भी तो चेंज हो गए, यू नो, पेरेंट्स आर चेंज। Changed. हम घर में व्हाट काइंड ऑफ कल्चर वी आर गिविंग टू द children. चिल्ड्रंस, True. इट डिपेंड्स ऑन। सो बेसिकली तो आपका डिपेंड करता है आपकी फैमिली वैल्यूज, घर में कैसा कल्चर है, किस तरह का व्यवहार आपका है बच्चों के साथ, बच्चों का आपके साथ में है, तो वो बहुत डिपेंड करता है। देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स, सो ये सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों ने अडॉप्ट की है और कहीं ना कहीं हम मशीन बन गए हैं। वी एक्सपेक्ट कि हमने लाइक वी डिड समथिंग ऑन कंप्यूटर, कोई हमने एक्सेल बनाया और हमने प्रिंट निकाल लिया, वी गॉट द रिजल्ट इंस्टेंटली। हमने कोई भी चीज़ की और हमको कोई बिल निकालना है, उस बिल का हमने प्रिंट निकाला इमीडिएटली, हमें चाहिए, हमने उसको कमांड दी और प्रिंट निकल गया। सो वी आर हैबिचुअल ऑफ इंस्टेंट रिजल्ट्स, हमें इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम of the विद youth अस। today. हमें हर चीज इमीडिएटली चाहिए एंड उसकी वजह से हम इतना ज्यादा बच्चे इम्पेशेंट हो गए हैं, दे लॉस देयर पेशेंस, दे नीड एवरीथिंग इन अ शॉर्ट स्पैन, Short span. और जो होता नहीं है दैट मेक्स देम Restless. रेस्टलेस हो जाते हैं, impatient. डिप्रेशन में चले जाते हैं। वी हैव सीन मेनी ऑफ केसेस, लाइक अभी एक वो हमारे यहाँ कॉरपोरेशन में एक बिल्डिंग से एक लड़के ने, 28 साल का लड़का था, उसने छत से कूद कूद के जान दे दी बिकॉज ऑफ ही मस्ट बी फेसिंग सम प्रॉब्लम जॉब को लेके। वी आर इन, मतलब ही वॉज इन अ प्राइवेट जॉब, निकाला होगा या जो भी है, दैट्स ओके, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्यों निकाला क्या निकाला, बट इतना भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए यू आर लूजिंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर फैमिली देयर। तुम्हारे पेरेंट्स हैं, तुम्हारी बच्ची है, तुम्हारे वाइफ हैं, हम क्या सोच के उन्हें छोड़कर चलेंगे। तो कहीं ना कहीं पेशेंस की बहुत कमी है आज के यूथ में, और जो हम समझना भी नहीं चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगेन दैट इज ऑल रिलेटेड विद दी सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज उसके साथ कनेक्टेड हैं। Very rightly said, तुलसी जी, absolutely correct कि जो बच्चे हैं आजकल के, the youth है, वो बिल्कुल एक duality में चल रहा है, एक घर का सिस्टम और एक environmental system. So there is a whole confusion and a chaos. अब बच्चे की choices के वो ना या तो अपने family values के साथ चले, या फिर जो आजकल की जो speed है, जो हमारी 21st century की टेक्नोलॉजी वाली स्पीड है उसके साथ। तो अभी आपको, जैसे आज आप शांतिवन आई हैं एंड ब्रह्मा कुमारीज में, तो आई थिंक इट्स योर फर्स्ट विजिट। या इट्स योर फर्स्ट विजिट। सो कैसा लग रहा है आपको? और आप देखिए, जैसे आप एक स्पिरिचुअलिटी के एक बहुत हमारा मतलब जो हमारा फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी का, तो आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, या आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट आज के सिनेरियो में तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई केम इन 2004 टू माउंट आबू फॉर विजिटिंग माउंट आबू, और that day we visit Brahma Kumari, the another one, Mount Abu Mount Abu ऊपर, one. So we went there, we just sit there for 20-15 minutes and we just done some meditation over there, and was really very peace over there. Then of course life was running like anything, and then I met with Anita Didi and Brahma Kumari, Sector 6 RK Puram, 6 years back. And then I started visiting there. And in many festivals, she used to call me on Rakhi, Janmashtami, or the Shivratri and all. And otherwise also sometimes. And sometimes she called me for some local things, like the electrical issues and all, the street issues and all. So whenever I goes there also, I really feel so calm. So I mean that vibes what I'll get there is entirely different. Especially like I'm in a political system,
So we more into the negative vibes surrounded with the people. The stresses of Yes, all yes. across. So stress, stress without anything, we will get stressed. तो वहाँ there की I वाइब्स जैसे feel- थी, तो आप शांतिवन में So आप when I हैं तो reach here, so yesterday morning I attend many of the sessions. Everybody has given their their Feedback. thoughts about life or about the peace. It's all about. I was talking to my husband yesterday. He said one thing. Everybody is sharing their views. It's fine. It's all about आप उसको अपनी लाइफ में उतारो. That is important. जितना उसके भी execution कहा, हम अपनी life में execution is कैसे- really important. Knowing is one of the thing, but उसको उतारना is really very important. और जब हमने यहाँ एंट्री की, हम यहाँ पहुँचे, so there is a different places. प्रकाश धाम, अव्यक्त लोक में भी हम बैठे और प्रकाश धाम में भी हम बैठे. दोनों जगह there was a different vibes I felt. And it was again very calm, very peaceful. और एंटायर आपका जो कैंपस है, उस पूरे कैंपस के अंदर मैं कल से जब से आई हूँ, मतलब आई एम जस्ट लीस्ट बॉदर अबाउट द दिल्ली, जस्ट लीस्ट अबाउट बॉदर अबाउट व्हाट वर्क इज गोइंग ऑन, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, Because लेट दुनिया इट बी. आपकी बिल्कुल शिफ्ट हो गई है हाँ, एकदम। लेट इट बी कि आई एम हियर, आई नीड टू बी हियर. और ये सब चीजें तो जिंदगी भर की हैं, चलती रहेंगी. बट यहाँ जो मैं आई हूँ, यहाँ जो मैं लेने आई हूँ, दैट आई विल नॉट गेट इट अगेन एंड अगेन. इस जगह तक मैं इतना दूरी नाप कर यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, तो आई शुड बी हियर. और उसमें फिर हम गए, सुबह भी 7 से 8 का भी सेशन मैंने सुना, और परमात्मा के बारे में आज सुबह उनका सेशन था, कल भी सुना, बहुत लोगों को सुना. एंड इट्स काइंड ऑफ अ डिफरेंट. आई वाज फीलिंग लाइक कि नहीं 2-3 दिन नहीं, थोड़ा दिन रुक के और जाते आराम हैं. करना हाँ, चाहिए। सो बी हियर, थोड़ा अपनी खुद को चार्ज करके, लाइक वुड यू से, कि चार्ज करके हम जाएं, तो वो डेफिनेटली देन यू डील विद इवन मोर things and all at more public wisely front, and more more better wisely. ways. But such a wonderful feeling. और एक जो पीस आपको जो आसान नहीं है आज के समय में मिलना, तो ओम शांति आपने रियली महसूस करी? I really felt so good. मतलब यहाँ पर आने के बाद, और even forget about the मतलब हम इनकी बात किया, beyond that even मैं जहाँ रुकी हूँ, जहाँ मैं पहले हम रुके, फिर हमने चेंज किया, वहाँ भी वी फाइंड अ वाइब्स. तो मतलब इट वाज नॉट लाइक कि हम किसी होटल में रह रहे हैं, किसी उसमें रह रहे हैं, कि इट वाज लाइक कि वी आर विद इन द कैंपस, और इस कैंपस के अंदर ही हम वी आर सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर. तो वहाँ पर भी वैसी ही वाइब्स मिली जो पूरे कैंपस के अंदर है. So nice, yeah. सो आई रियली फेल्ट सो गुड. और डेफिनेटली दैट वाज माय फर्स्ट विजिट. इस तरह का विजिट पहला था. So we hope to see you again. या श्योर, डेफिनेटली. And being a regular part of the Raj Yoga meditation. Yeah, आप वो भी sure. प्लीज एक्सपीरियंस जरूर कीजिएगा. Yes. है ना? मेडिटेशन आई डू अदरवाइज, मतलब करती थी अभी बीच में, बिकॉज पॉलिटिकल सिस्टम ने सब गड़बड़ा दिया. बट अदरवाइज आई डू योगा भी, आई डू वॉक भी, एंड आई डू दिस मेडिटेशन ऑल्सो. बिकॉज ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इतने स्ट्रेस से बाहर निकाल सकती हैं. देयर इज नो बडी एल्स, देयर इज नो मेडिसिन, देयर इज नो पर्सन जो who आपको can stress से help बाहर us out. निकालेगा. This is the only thing कि जिसमें आप स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ True. मेडिटेशन. So हमारा स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल कितना मायने बिल्कुल. रखता है ना? बहुत मायने रखता है, मुझे लगता है. और आज के समय में मुझे लगता है इट इज रियली शायद किसी एलोपैथिक डॉक्टर की उतनी जरूरत नहीं हो आज के समय में जितनी इसकी जरूरत है. स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि बच्चों के अंदर ये जो डिप्रेशन और ये सब चीज़ों से उनको बच्चों को बाहर निकालना है. और मुझे लगता है कि इस चाहे ये हमारा ये संस्थान है, कहीं पर भी मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को इसमें लाना चाहिए. बिल्कुल. एक सर्टन एज के बाद तो लोग आते हैं, 50-55 के बाद वाले आते हैं, 60 के बाद वाले आते हैं, बट अर्ली एज It मतलब is helpful then. हाँ, बिल्कुल, यूथ शुड बी बिल्कुल. है. So thank you so much, Tulsi ji. It was a pleasure to have you with us, and hope to see you back. Yeah, sure. And Om Shanti. Om Shanti. So viewers, we have listened to Tulsi Joshi ji, her dynamic journey, her journey from corporate to a political life, and so much of things she has achieved in a span of 5 years. So दर्शकों, हम मिलते हैं दोबारा अगले एपिसोड में, एक मुलाकात में, कुछ और डायनेमिक पर्सनालिटीज के साथ. तब तक के लिए ओम शांति.